Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to teach you subject science of class 7th. This is our chapter 3rd and chapter 3rd is based on fiber to fabric. So today I am going to discuss with you processing fiber into wool. Means how to convert fiber into wool. So there are some steps in this process. So the first step is shearing, second is scoring, third is sorting, fourth is cleaning of words, fifth is dyeing, and the last one is rolling. This is 6 steps are here in processing fiber into wool. And next topic I will going to discuss with you, that is occupational hazards. Okay, so this I will discuss with you today. Okay, so here in this chapter fiber to fabric, I have already explained you that what to understand by the fiber and how the fiber is converted into a fabric. Actually, there are two types of the fibers present. One is natural, another one is synthetic. The natural fibers we just get through the plants and animals. So from the plants we get cotton and jute, and from the animals we just get wool and silk. So this is already in the earlier video we have discussed about that. What do you understand by the animal fibers and how we get we get that wool through the animals, यानी animals that eat wools. कौन से ऐसे animals होते हैं, those gives us wool. That things we have already discussed. And also from fiber to wool means how we convert fiber into a yarn or a wool. कैसे हम fiber को wool में change करते हैं. What is the process of rearing and breeding of sheep? So rearing means I have told you means sheeps को पालना, और breeding means एक अच्छी breed जिससे हमें एक थिक अमाउंट वाली एक मीन्स ज़्यादा हाई अमाउंट में हम वूल गेन कर सकें, ऐसी ब्रीड को पैदा करने के लिए ब्रीडिंग प्रोसेस होती है शीप्स में. ओके, सो दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन अवर अर्लियर वीडियो. इवन आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल मीन्स हाउ वी चेंज फाइबर इनटू वूल. वो प्रोसेस क्या होती है, कुछ स्टेप्स में से होकर के गुजरती है. सो दैट स्टेप्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू in our earlier video, and I have told you that in our next video we will discuss these all the steps in detail. I just told you about the shearing, scoring, sorting, cleaning of words, dyeing and rolling. These steps I have told you, 6 steps were there for the processing of fiber into wool. So today I am going to discuss with you these all the process in detail. So here look in this paragraph, processing fiber into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is finished product of a long process which involves for the following steps. यानी जो भी वूल हम यूज़ करते हैं निटिंग के लिए या ब्रीविंग प्रोसेस के लिए, जो भी वूल का यूज़ करते हैं वो एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हमारी यूज़ करने के लिए हम मीन्स उसको यूज़ कर सकते हैं. सो हियर इन फर्स्ट स्टेप द फ्लीश ऑफ द शीप along with the thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. शेयरिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, द फ्लीश ऑफ द शीप यानी जो शीप्स के ऊपर बाल होते हैं, उनके हेयर होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. तो ये शेयरिंग प्रोसेस वी जस्ट डू थ्रू द मशीन्स. कुछ मशीन्स होते हैं. हैव यू एवर सीन एट योर होम योर ब्रदर्स योर फादर्स व्हेन दे आर डूइंग शेप्स, जब वो शेप्स करते हैं, सो दे जस्ट डू they just used some machines for doing that shapings at all and all. So that kind of machine we just use for the shearing process. वैसी ही machines का use हम करते हैं shearing process के लिए. Machines similar to those used by barber are used to shape of hair. यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. ठीक है, ऐसी ही मशीन का यूज़ करते हैं जो कि बार्बर्स शेप बनाने के लिए, हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं. और ज़्यादातर ये जो रिमूविंग का, ये शेयरिंग का काम होता है वो हॉट वेदर में यानी गर्म वेदर में होता है.
दिस एनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट हेयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। उससे क्या होता है, जब हम गर्म वेदर में यानी हॉट वेदर में ये वर्क करते हैं तो शीप्स बिना हेयर की भी ऐसे वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये हेयर ही होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड वेदर से। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। इन हेयर से हमको क्या मिलता है, वूलन फाइबर्स वी जस्ट गेन थ्रू दिस वूल, दिस फ्रॉम दिस फाइबर। ओके, वूलन फाइबर हमको मिलते हैं शीप्स की वूल से। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और फिर इस वूलन फाइबर को हम प्रोसेस के द्वारा वूलन यार्न में, ये फाइबर क्या है, फाइबर इज़ अ कंटिन्यूस थ्रेड, इट्स अ सिंपल थ्रेड एंड व्हेन इट इज़ प्रोसेस, जब इसको एक प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस लाइक स्पिनिंग एंड अदर प्रोसेस, तो उसके थ्रू इसको यॉन में, स्पिनिंग ऑफ यॉन हमने पढ़ा हुआ है इन अवर अर्लियर क्लासेस। इन 6th क्लास स्पिनिंग ऑफ यॉन वी हैव स्टडीड कि स्पिनिंग का प्रोसेस हम तकली और चरखे से करते हैं और इवन मशीन्स का यूज़ करके भी करते हैं। तो जब हम वूल को स्पिन करके स्पिन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो वो क्या होती है, यॉन में यानी ऊन में या धागे में या स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, shearing doesn't hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. shearing process भी जब हम शीप्स पर शेयरिंग प्रोसेस करते हैं तो वो उसको हर्ट नहीं करती, उसको चोट नहीं लगती, बिकॉज डेड स्किन जो होती है वो बॉडी से रिमूव होती है। लाइक द सेम जब हम अपनी हेयर कट करते हैं और जब हमारे फादर जो होते हैं, हमारे ब्रदर होते हैं, शेविंग करते हैं, तो सेम प्रोसेस होता है शेयरिंग का। इस प्रोसेस में कोई कट मतलब कोई हर्ट नहीं होता है शीप्स को। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड? ये मैंने आपको बताया क्यों नहीं होता, बिकॉज जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ अ डेड एंड ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप्स ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और शीप्स की हेयर्स भी वापस फिर से वैसे ही ग्रो कर जाते हैं जैसे कि हमारी हेयर वापस से ग्रो करने लगते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ अ शेयरिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी होती है, शेयरिंग प्रोसेस होती है, जिसमें कि हम कुछ मशीन्स का यूज़ करते हैं और मशीन्स के थ्रू दैट मशीन्स वी जस्ट रिमूव द हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप्स। ओके, एंड आफ्टर रिमूविंग दिस हेयर दिस फाइबर इज प्रोसेस्ड एंड वी जस्ट ऑब्टेन अ वूलन यॉर्न। फिर हम उसके थ्रू वूलन यॉर्न बनाते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द प्रोसेस यू कैन सी हेयर। ये है शेयरिंग ऑफ द शीप्स की बॉडी से बहुत ही ईजीली हेयर को रिमूव किया जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ शेयरिंग प्रोसेस। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इनटू अ टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। अब क्या होगा, डेफिनेटली जो शीप्स होते हैं वो हेयर इन देयर मूव करते हैं, जंगल में भी जाते हैं, तो उनकी बॉडी पर ग्रीस, डस्ट और डर्ट तो लगा ही होता है। तो फॉर वॉशिंग इन सेकेंड स्टेप वी जस्ट डू द वॉशिंग प्रोसेस, यानी वी जस्ट वॉश इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस। उस हम हेयर को क्या करेंगे, वॉश करेंगे टैंक्स में ग्रीस, डस्ट और डर्ट को हटाने के लिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यानी वॉशिंग प्रोसेस इज अ स्कोरिंग प्रोसेस फॉर रिमूविंग द डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप्स, है ना। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। आजकल ये स्कोरिंग की प्रोसेस मशीन्स के थ्रू भी होने लगी है। ओके, सो यू कैन सी हेयर द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग। ये देखो स्कोरिंग प्रोसेस हो रही है। सो दिस प्रोसेस इज डन बाय द हैंड। ये हैंड से प्रोसेस हो रही है, जिसको टू पर्सन्स आर हेयर एंड दे आर वॉशिंग्स द हेयर्स ऑफ द शीप्स हेयर एंड द अनदर वन स्कोरिंग इज डन बाय द मशीन। यहाँ पर जो स्कोरिंग प्रोसेस हो रही है वो मशीन के थ्रू हो रही है। देखिए वाटर आ रहा है और ये शीप्स हेयर्स हैं जो इसके अंदर ये इसकी डर्ट को, ग्रीस को रिमूव करने के लिए दे आर डूइंग जस्ट दिस प्रोसेस। सो स्कोरिंग process by machine and scoring process by tanks. This is the scoring process. Now next is in third step, आफ्टर स्कोरिंग। अब स्कोरिंग करने के बाद सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग की जाएगी। सॉर्टिंग मीन्स इट्स नेम इंडिकेट शॉर्ट करना, शॉर्ट लिस्टेड जैसे हम बोलते हैं ना, मीन्स शॉर्ट करना
अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़, देयर टेक्सचर, हम उनको सेपरेट करेंगे. सो द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर आर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड. अब क्या होता है कि जो हेयर को वॉश करने के बाद फैक्ट्रीज़ में भेज दिए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, उनके टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग कितने मोटा है, कौन सा पतला है, कौन जिसका कलर एकदम फेयर है वो सेपरेट कर लिए जाएंगे, जिसका कलर थोड़ा डल है वो मतलब अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर्स उनको सेपरेट कर लिया जाता है. ओके, सो दिस process is sorting. You can see here the process of sorting. Okay, now in the next step, in fourth step, the small fluffy fibers, छोटे छोटे fluffy fibers called words, जिनको हम words या रोई कहते हैं. हमारे कपड़ों पे भी जब हम वूलन्स इन विंटर टाइम वी कैन सी वर्ड्स, और जिनको हम रोई कहते हैं वो अपने कपड़े पर देख सकते हैं. आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. जो फ्लफी फाइबर्स या बर्ड्स होते हैं वो उस हेयर से निकाल लिए जाते हैं. दीज आर द सेम वर्ड्स विच, ये सेम वही वर्ड्स होते हैं विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो कि हमारे स्वेटर्स पे भी कभी कभी दिखाई देने लगते हैं. द फाइबर आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड. दिस इज़ वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर. तो वापस से उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वापस से हम उसको स्कॉर्ड मीन्स वॉश करते हैं और उसके जो हमारी यॉन होते हैं मीन्स हमारी फाइबर होती है उस पर से ये जितने भी वर्ड्स या फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और फिर हमारी जो वूल हो जाती है वो रेडी हो जाती है फाइबर, जो मतलब एक प्रॉपर फाइबर रेडी हो जाता है. देन ऑन द स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर. आप क्या करेंगे, हमको डिफरेंट कलर में जो जनरली नेचुरल कलर्स होते हैं फाइबर्स के, वो क्या होता है, वाइट होता है, ब्राउन होता है और ब्लैक होता है. तो अब हमको अगर एक अदर कलर वेरियस कलर्स चाहिए तो हम उनको डाई करते हैं. ठीक है, एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप गोट इज ब्लैक, ब्राउन, वाइट, आई हैव टोल्ड यू, एंड फॉर गेटिंग द डिफरेंट कलर्स वी जस्ट डाइड इन वेरियस कलर्स. इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, वी जस्ट डू द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड. अब फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्ड एंड रोल्ड इन यॉन. अब क्या किया जाता है, इस फाइबर को स्ट्रेट कर दिया जाता है कॉम्ब के द्वारा और रोल करके और यॉन में तैयार कर लिया जाता है, यानी कि स्ट्रैंड में, धागे में या ऊन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है. द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द स्वेटर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ. जो लंबी ऊन या यॉन होती है वो तो हम स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो वूवन करके या वूवन प्रोसेस द्वारा कपड़े बनाने के लिए यूज़ की जाती है. ओके, सो हियर 6 स्टेप वी जस्ट यूज़. दिस इज़ द रोलिंग प्रोसेस, यानी जो फाइबर्स होते हैं उसको रोल करके यॉन में चेंज कर लिया जाता है. दिस इज़ द रोलिंग प्रोसेस हियर. सो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? देयर आर 6 स्टेप्स. 6 स्टेप्स हैं. व्हाट आर दी 6 स्टेप्स? शेयरिंग्स. फर्स्ट इज शेयरिंग प्रोसेस हो गया for removing the hairs from the body of the sheep through some machines. Then scoring means washing the hairs of the sheep for removing the dirt or grease. Sorting according to their textures, उनको separate करना. क्लीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जो फ्लॉपी या वर्ड्स जो हमारी फाइबर पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर रिमूविंग दैम वी जस्ट डू द क्लीनिंग ऑफ वर्ड्स. दैन डाइंग, फॉर गेटिंग वेरियस कलर्स वी जस्ट डू द डाइंग. एंड द फाइनली रोलिंग, यानी कि फाइबर्स को रोल करके चेंज इनटू अ यॉन फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग फॉर मेकिंग फैब्रिक बनाने के लिए वीविंग और निटिंग का यूज़ करके हम मीन्स यॉन का यूज़ करके वीविंग और निटिंग कर सकते हैं और फैब्रिक तैयार कर सकते हैं. सो हियर 6 स्टेप्स आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स इनटू वूल. ओके, सो these are the 6 steps here. Now come on your yes, you can see here these pictures also. In these pictures you can see shearing process, ठीक है, then scoring process, then ग्रेडिंग या जो हमने अपना शॉर्टिंग बोला है, देन कार्टिंग यानी वही हमारी जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है या हमारी शॉर्टिंग हो गया हमारा. ठीक है, और ड्राइंग प्रोसेस और स्पिनिंग वो सेम है, बोथ आर द सेम, है ना. टर्म्स आर चेंज्ड बट द प्रोसेस आर सेम, वॉट एवर आई हैव डिस्कस विद यू. Then come on your next point. Yes, the next point is occupational hazard. Occupational hazard यानी व्यवसाय की वजह से hazard यानी जो परेशानी या कभी कभी
मीन्स खतरा जोखिम भरा जो खतरा होता है, व्यावसायिक खतरा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। एक्चुअली हमारी जो कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वूल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। बट शॉर्टेस्ट जॉब इज़ रिस्की as sometimes they get infected by the bacterium anthrax. Actually anthrax is a disease, एक डिसीज़ होती है जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है जिसे हम एंथ्रेक्स बैक्टीरियम कहते हैं। और ये क्या होता है, शॉर्टर मीन्स जब हम जो ये वूल्स फैक्ट्री में काम करने वाले पीपल्स होते हैं और वूल्स की बॉडी से जब ये शेयरिंग का काम करते हैं यानी वूल को रिमूव करने का काम करते हैं, तो उनके बहुत सारे जो शीप्स होते हैं, जनरली इन मोस्ट शीप्स एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कहते हैं। और उसके इन्फेक्शन से एक्चुअली वो क्या होता है, उसके स्पोर्स जो होता है वो लोगों के बॉडीज़ में, जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके बॉडी में इन्फेक्ट कर देते हैं और उसके इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, फैटल ब्लड डिसीज़ मीन्स जानलेवा खून की बीमारी हो जाती है जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसे हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड यानी जोखिम भरा व्यवसाय जिसे हम कहते हैं वो हम इसे कह सकते हैं, यानी जानलेवा व्यवसाय। और क्यों हम इसे जानलेवा व्यवसाय कह रहे हैं या जोखिम भरा व्यवसाय कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ this occupation those people who are doing job in food industry, they are suffering with the bacterium anthrax and the disease of anthrax disease से सफ़र करते हैं और जिसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, which causes a fatal blood disease called shorter disease। एक ब्लड में जानलेवा बीमारी हो जाती है जिसको हम शॉर्टर डिसीज़ कहते हैं। सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल। और इस तरह की जो रिस्क उनको वर्कर्स को, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को फेस करना पड़ता है, इसको ही ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड या जोखिम भरे व्यवसाय कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। देन द नेक्स्ट टॉपिक, yes, our next topic is silk. What do you understand by the silk? Silk fiber are also animal fibers. Yes, silk fiber हमारा क्या हो, animal fibers होता है। जैसे wool from the plants we get cotton and jute। तो हमारे जो प्लांट फाइबर हो गए वो हो गए हमारी कॉटन एंड जूट, और सिल्क हमारी, और सिल्क इवन वूल हमारी क्या हो गए, ये एनिमल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वर्म होता है, जैसे शीप से वी जस्ट गेट वूल, लाइक द सेम सिल्क वर्म से या सिल्क मॉथ से वी जस्ट गेट सिल्क फाइबर्स, उनसे हमको सिल्क फाइबर मिलता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यस, जैसे रियरिंग ऑफ शीप्स थी फॉर गेटिंग वूल्स, जैसे हमें वूल प्राप्त करने के लिए हम रियरिंग ऑफ शीप कर रहे थे, यानी शीप को पाल रहे थे, लाइक द सेम रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म को यानी रेशम को कीटों को पालना फॉर गेटिंग सिल्क, रेशम के कीटों को पालना सिल्क प्राप्त करने के लिए, दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो हम सेरीकल्चर किसे कहते हैं, फॉर गेटिंग सिल्क, rearing of silkworms, यानी rearing of silkworm for obtaining the silk is called sericulture. This is a sericulture, उसको हम sericulture कहते हैं। Find out from your mother, aunt and grandmother the kind of silk sarees they have, list the kind of silk। कभी अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी घर की आंटी वगैरह से पूछना कि कितने टाइप्स होते हैं, एक्चुअली हाउ मेनी काइंड्स ऑफ देयर ऑफ सिल्क, सिल्क के कितने टाइप्स होते हैं। सो बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। अब हम कैसे सिल्क को ऑब्टेन करते हैं ये जानने से पहले हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी सिल्क मोथ, सिल्क के कीड़े से रेशम एक्चुअली कैसे मिलता है, ये हिस्ट्री की स्टडी करना इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। सो इन दिस वीडियो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। रीड दिस चैप्टर केयरफुली, like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day, kids.